अब की बार ट्रम्प सरकार. The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And if India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. The words of candidate Trump have connected well with President Trump. नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आखिर रूस से तेल खरीदने के सवाल पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब आ ही गया, और ये जवाब जितना लंबा है उतना ही गोलमोल भी, क्योंकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगर चाहते तो एक लाइन में कह सकते थे कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने भारत की जरूरतें समझाई। So let me share some thoughts with you and make clear how we are thinking about this particular issue. You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability. Naturally, when you are dependent to the extent of 80-85% on an imported resource, you have to have concerns about the possibility of inflation driven by energy costs. So it's not surprising, therefore, that our foremost priority is to safeguard the interests of Indian consumers insofar as energy is concerned, to ensure that they receive adequate energy at the right price and through reliable and secure supplies. And our import policy insofar as energy is concerned is therefore driven entirely by these objectives. Now, you would also have observed that in recent years, the global economy has faced significant uncertainties, which have had a major impact on the stability of global energy markets. India, certainly, I would imagine a lot of countries around the world, if not every country, have a shared and common interest in ensuring stable energy prices and secure supplies. And in fact, I would underline that India is not just one of the largest consumers of energy, but it also plays an important role as a stabilizing factor in global energy markets. नेशनल इंटरेस्ट की बात की, कंपनियों के फैसलों का हवाला दिया, ग्लोबल मार्केट का जिक्र किया, बस एक बात नहीं बोल पाए कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। और शायद मैंने आज तक सीधे सवाल का इतना घुमावदार जवाब नहीं सुना। अब सवाल ये है कि जब जवाब इतना घुमावदार है तो क्या फैसला भी उतना ही मजबूरी भरा है? क्योंकि इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा तो भारत को 9 से 10 अरब डॉलर का सीधा नुकसान होगा। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. The Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And यानी यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह सीधा आर्थिक नुकसान है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर मोदी सरकार ने रूसी तेल की खरीद पर रोक लगा दी या कम कर दी। यह सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं, अब आम जनता पूछ रही है कि क्या यह राष्ट्रहित है या दबाव में लिया गया फैसला। पुतिन का ही एक वाक्य और याद आता है कि भारतीय अपनी गरिमा से समझौता नहीं करते। दुर्भाग्य यह है कि आज भारत की विदेश नीति रणनीति से नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल से चलती दिख रही है, और वह रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदेश में साफ लिखा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और भारत अपने हथियार खरीदेगा। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? और अगर हमें लगता है कि भारत किसी भी तरह से रूस से तेल खरीदना शुरू करता है तो भारत पर फिर से 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह कोई कूटनीतिक सलाह नहीं है, यह खुली धमकी है।
या भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, लेकिन मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। सवाल ये है कि गुलाम भारत में फैसले लंदन में होते थे और आज मोदी जी के भारत में फैसले अमेरिका में हो रहे हैं। क्या यही विश्व गुरु के लक्षण है या यह नई रस्म गुलामी है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ट्रंप कैसे तय कर सकते हैं कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, किससे हथियार खरीदेगा और किससे व्यापार करेगा? इससे पहले अमेरिका ने दबाव बनाकर भारत का ईरान से तेल व्यापार बंद कराया और अब रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई जा रही है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि भारत सरकार अमेरिका की हर मांग पर चुपचाप मान ले रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद ये है कि ईरान और रूस दोनों भारत के अच्छे मित्र और कठिन समय के साथी भी रहे हैं। इनसे व्यापार बंद होने का मतलब है भारत का और कमजोर होना। ये वही यूएसएसआर यानी आज का रूस था जिसने पाकिस्तान से युद्ध के समय खुलकर भारत का साथ दिया था। उस दौर में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और यूएसएसआर की मदद से ही भारत, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ जवाब दे पाया था। और आज उसी रूस से भारत अमेरिका के कहने पर तेल नहीं खरीदेगा। क्या आप इस ऐतिहासिक विडंबना को समझ पा रहे हैं? क्या यह साधारण बात है? सरकार नहीं समझ रही कि अमेरिका भारत को धीरे धीरे अलग थलग करना चाहता है। फिर भी भारत सरकार अमेरिका की हर मांग क्यों मान रही है? आखिर क्या मजबूरी है? या वही अमेरिका है जिसने भारतीयों को जंजीरों में बांधकर बेइज्जत करके वापस भारत भेजा था? इसी अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए और आज जब पूरी भाजपा ट्रेड डील को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो सच्चाई ये है कि 2014 में जहां अमेरिका का औसत टैरिफ 2.5% था, वहीं आज कथित कटौती के बाद भी 18% हो गया है। अब बताइए, यह अमेरिकी टैरिफ है या भारत की महंगाई? भारत किससे व्यापार करेगा, किससे तेल खरीदेगा, किससे हथियार खरीदेगा और अपने प्रोडक्ट किसे बेचेगा? यह सिर्फ और सिर्फ भारत को तय करना चाहिए, कोई और नहीं। और अगर भारत यह खुद तय नहीं कर सकता तो यकीन मानिए भारत की बागडोर गलत हाथों में है। इतिहास गवाह है, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। गुलाम भारत में ब्रिटेन ने मैनचेस्टर के कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगाया था। ढाका का मलमल उद्योग जो पूरी दुनिया में मशहूर था, उसे तबाह कर दिया गया। बुनकर के अंगूठे कटवाए गए और लंदन के कपड़े भारत में लगभग बिना टैक्स के भेजे गए। नतीजा ये हुआ कि भारतीय उद्योग बर्बाद हो गया। तब भारत का शासन ब्रिटेन के कर्मचारी चला रहे थे, इसलिए यह स्वाभाविक था। लेकिन आज के भारत की क्या मजबूरी है? इस विदेशी आर्थिक साजिश को नाकाम करने के लिए ही महात्मा गांधी को विदेशी कपड़ों की होली जलानी पड़ी और स्वदेशी अपनाओ का नारा देना पड़ा। अगर हमने अपने इतिहास से कुछ सीखा होता तो आज अमेरिका ब्रिटेन की तरह भारत के व्यापारिक फैसले नहीं ले रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमने इतिहास से गांधी और नेहरू की आलोचना के अलावा कुछ भी नहीं सीखा। क्या आज के भाजपा नेता और केंद्र सरकार में बैठे मंत्री जो खुद विदेशी गाड़ियां, विदेशी चश्मे, विदेशी कपड़े और विदेशी हर चीज इस्तेमाल करते हैं, क्या वे इस देश को अमेरिकी दादागिरी से आजाद करा पाएंगे? सच्चाई ये है कि ना उनमें ऐसी इच्छा है और ना ही ऐसी क्षमता कि देश की सरकार अमेरिका के आगे बेबस और लाचार दिख रही है, जिसे नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी देश की बर्बादी की ओर बढ़े इस बड़े कदम को अंधभक्त मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। गोदी मीडिया ज्यादा टैक्स देने के फायदे गिनाएगा, अपने प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट न होने का ठीकरा जनता के सिर फोड़ेगा और इस देश का उपभोक्ता, इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की स्वतंत्र विदेश नीति इसकी कीमत चुकाती रहेगी। देश में शायद ही कुछ ऐसा बचा है जो खतरे में नहीं है और अब इस देश का भविष्य असली देशभक्तों के हाथ में है। अमेरिका को खुश करने की कीमत आज भारत चुका रहा है और सवाल ये है कि क्या हम इसे पहचानेंगे
या फिर हर बार की तरह तालियां बजाकर चुप रह जाएंगे? आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।